हाँ, लेटर वहां आ गया है, जाना है वहाँ मुंबई। Hello everyone, good morning. We'll be starting the meeting in just few minutes as people are still joining. Let's आवाज wait बहुत आ रही, 5 minutes and हेलो। then we'll start. ये बंद है। नहीं, अपने यहाँ से बंद चालू है, वहां से बंद। पूर्णिमा वाला बंद है ना। हाँ, म्यूट कर सकते हो। We will be starting the session in just few minutes, waiting for few more people to join and then we'll start. नहीं समझ फिर। शर्मा जी। है देखो। I think we should start now. Amrita, please start. Am I audible? Hello. Yes, ma'am. No, you are Yeah, audible. Amrita, Yes, ma'am. yeah, हाँ पूर्णिमा please start, ऑडिबल please. ऑडिबल। Okay.
So now we will start. And I would like to warmly welcome to all of you today. Expense Buddy, which is officially launching to cloud-based all-in-one expense management platform designed specifically for schools and colleges. It simplifies your daily financial operations from voucher payments. It brings together your accounts, admin, and it's on one secure, centralized platform. Unlike traditional tools like Tally, spreadsheets, Expense Buddy offers such as a color-coded, easy-to-use interface, role-based approval flow, auto handling of GST, full edit logs, export tools, and cloud backups. As today's session is aimed to helping you become familiar with the platform before it goes live, we will walk you through all the major modules like the voucher hub, payment master, buildings, and journals. You will get to see practical real times uses and best practices. So this training session will be held by the Purnima ma'am and Arun sir, who will take you through each part of the software step by step. Before to begin, just a quick note. Please keep your microphones muted during the session. Feel free to drop your questions in the chat. We will address them at and during the Q&A. So without further delay, let's begin today's session. Now over to you, Purnima ma'am. Thank you, Amrita. I'm Purnima, Customer Success Analyst at Team EduBuddy. I'm really excited to walk you through this new module of EduBuddy, that is Expense Buddy. So without wasting time, let's see how it works. I'll be sharing my screen and I request you all to keep your microphones muted. Okay. We'll go in the login page and we'll do the login. We'll go here in the expense module. In the expense module, you can see various sub-modules. We'll go in this part, expense master. एक्सपेंस मास्टर में आप जो भी अपनी एक्सपेंस की कैटेगरीज हैं, बैंक अकाउंट्स हैं, वेंडर्स अकाउंट्स हैं, एम्प्लॉयज वगैरह हैं, उनका सेटअप कर सकते हैं. लाइक हमें बैंक अकाउंट का सेटअप करना है, वी विल क्लिक इनटू द बैंक अकाउंट, विल क्लिक ऑन ऐड अकाउंट नंबर. हियर वी विल पुट द अकाउंट नंबर, बैंक नेम, like for now I'm keeping it ICICI Bank. IFSC code, whatever it is, you can put here and you will click on save. The entry will get saved here. इसी तरह से हम वेंडर्स की एंट्री ऐड कर सकते हैं, एक्सपेंस कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं, अपनी एम्प्लॉयज को भी यहाँ से हम लोग ऐड कर सकते हैं, शो कर सकते हैं. वेंडर्स, जैसे हमें कोई वेंडर ऐड करना है, हमने यहाँ पे ऐड किया वेंडर नेम संजना, कॉन्टैक्ट नंबर हम ऐड करेंगे, ईमेल एड्रेस या फिर एड्रेस, जीएसटी नंबर, पैन नंबर, ये सारी डिटेल्स आप ऐड करके इसको सेव कर देंगे तो ये वेंडर नेम भी सेव हो जाएगा. ओके. इसी तरह से हम एक्सपेंस कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं, अपने अकाउंट्स को भी ऐड कर सकते हैं. जो भी अकाउंट हेड आप क्रिएट करना चाहें वो आप इस पर क्रिएट कर सकते हैं. अब हम देखेंगे कि वाउचर कैसे क्रिएट करते हैं, जनरल एंट्रीज कैसे पास करते हैं, और उसको कैश बुक या बैंक बुक में हम कैसे चेक कर सकते हैं. वाउचर हब में जाएंगे. वाउचर हब में आप 3 टाइप के वाउचर्स क्रिएट कर सकते हैं, पेमेंट वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर और इनकम वाउचर. पेमेंट वाउचर्स में जो भी आपको पेमेंट करनी है उन सारे वाउचर्स को आप यहाँ ऐड करेंगे. कॉन्ट्रा वाउचर्स में अगर आपको बैंक टू बैंक या फिर बैंक से कैश निकालना है या फिर बैंक में कैश सबमिट करना है तो आप कॉन्ट्रा वाउचर्स में एंट्री करेंगे. इनकम वाउचर, जो भी आपकी इनकम होगी उसकी जो भी एंट्रीज होंगी वो इनकम वाउचर में होंगी. तो हम चलते हैं एक वाउचर क्रिएट करने के लिए. पहले हम वाउचर क्रिएट करेंगे पेमेंट वाउचर. वाउचर आईडी विल गेट क्रिएटेड ऑटोमेटिकली. डेट हम आज की सेलेक्ट करेंगे. स्टेटस है वी विल कीप इट एज अप्रूव्ड.
डिस्क्रिप्शन में जो भी डिस्क्रिप्शन है हम वो डाल देंगे, और अगर बैंक से पेमेंट है तो फिर हम बैंक पेमेंट में क्लिक करेंगे, अदरवाइज इफ इट इज कैश वी विल क्लिक नॉट क्लिक हियर एंड विल क्लिक इन द सेव वाउचर। सेव वाउचर पे जाके हमने ये वाउचर को सेव कर दिया। अभी हम लोगों को एम्प्लॉय पेमेंट पे जाना है या फिर वेंडर पेमेंट करना है, अब इसकी हमने जनरल एंट्री पास करनी होगी। लाइक ये पेमेंट हमने किया है, एम्प्लॉय पेमेंट को किया है, एम्प्लॉय नेम यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल हमने ये पेमेंट किया है आसिफ हुसैन को, अमाउंट है यहाँ पे 2000 रुपीज, और हम इसको सेव कर देंगे। ये एंट्री यहाँ पर सेव हो गई है। अब हम इसको जाके देखेंगे कि ये जनरल एंट्रीज में शो होगी। जनरल एंट्रीज में आप देखेंगे कि कैश अकाउंट में डेबिट में ये आपको एंट्री शो हो रही है, आसिफ हुसैन की 2000 रुपीज डेबिट अमाउंट, ये आपका शो हो रहा है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन आपने यहाँ पे अपने आप आ गया है। एंट्री आईडी एंड बैच आईडी विल आल्सो गेट क्रिएटेड। अब आपको इसको ये मैनेज रिकॉर्ड करना है। लाइक ये पैसा आपने कहाँ कहाँ खर्च किया, अपने एम्प्लॉय में जाएंगे, आपने किसी को पे किया है ये, या फिर आसिफ हुसैन ने खुद को ही ये पेमेंट कहीं इन्वेस्ट किया है, या फिर कहीं पे जहाँ पे भी खर्च किया है उस पर हम लोग नेम सेलेक्ट कर लेंगे। इट विल बी फॉर टेस्ट, वी कैन क्रिएट इट टू टेस्ट, टेस्ट पे कर देंगे। डिस्क्रिप्शन जो भी लेना है, बीइंग अमाउंट पेड टेस्ट फॉर डेकोरेशन, क्रिएट कर देंगे जनरल एंट्री, ये जनरल एंट्री क्रिएट हो जाएगी। जस्ट अ सेकेंड, पीपल आर वेटिंग इन द एडमिट। ठीक है, सो अभी सॉरी फॉर द इंटरप्शन, लेट्स कंटिन्यू। अब आप देख सकते हैं कि ये जो अमाउंट की एंट्री हमने करी थी आसिफ हुसैन की, इसको सॉरी फिर से हम लोग इसको एंट्री करेंगे आसिफ हुसैन की। अकाउंट सेलेक्ट किया हमने, बैंक अकाउंट, अमाउंट जो भी है 200 रुपीज, और ये हमने एंट्री कर दी क्रिएट जनरल एंट्री डिस्क्रिप्शन पर। अब ये देखिए, ये अब आपका क्रेडिट में शो हो रहा है ये 200 रुपीज अपने आसिफ हुसैन को, और जो भी आपने डिस्क्रिप्शन डाला है वो डिस्क्रिप्शन आपको शो हो जाएगा। यहाँ से आप फिल्टर्स लगा सकते हैं, बैच आईडी के थ्रू भी फिल्टर से सर्च कर सकते हैं, डेट के थ्रू भी आप सर्च कर सकते हैं कि किस डेट को कौन सा पेमेंट है, तो वो आपको फिल्टर से आप सर्च कर लेंगे जिस भी डेट का, या अगर आपको कोई रेंज सेलेक्ट करनी है तो वो रेंज भी आप फिल्टर रेंज से यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये एंट्री आप जाके पेमेंट एंट्रीज में इसका सारा रिकॉर्ड देख सकते हैं कि आपने एम्प्लॉय को जो भी पेमेंट किया है वो सारा इस पे शो हो जाएगा, जो वेंडर्स को पेमेंट किए हैं या एक्सपेंसेस पेमेंट हुए हैं वो सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे मेंटेन हो जाएंगे। अगर आपको किसी पर्टिकुलर पर्सन का या किसी पर्टिकुलर अकाउंट का लेजर चेक करना है तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप जनरल्स पे ही जाके वेंडर नेम सेलेक्ट करेंगे, लाइक इट वाज फॉर आसिफ, वेंडर नेम हमने एम्प्लॉय को किया था, राइट। यहाँ पर आप एम्प्लॉय नेम सेलेक्ट करेंगे, ओके। ये आप देख सकते हैं हमने जो भी एंट्री करी थी वो यहाँ पे शो हो गई। 2000 रुपीज था जिसपे से 200 रुपीज की हमने ये एंट्री करी थी क्रेडिट, और ये नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी शो हो जाएगा डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट।
इसी तरह से आप कैश बुक या बैंक बुक में जाकर चेक कर सकते हैं, जो भी कैश बुक की कैश की जो भी एंट्रीज हैं वो आपके कैश बुक में मेंटेन हो जाएंगी, बैंक की जो भी एंट्रीज हैं वो बैंक बुक में मेंटेन हो जाएंगी। अब हम फिर से चलते हैं वाउचर हब में। एक बार हम बैंक पेमेंट वाउचर की एंट्री करेंगे फिर से, जो कि बैंक के थ्रू हो। कीप द स्टेटस एज अप्रूव्ड, डिस्क्रिप्शन विल बी मेंशन्ड हियर एंड इस बैंक पेमेंट में हम क्लिक कर देंगे। इस पे आप सेलेक्ट करेंगे जो भी आपका बैंक अकाउंट है, लाइक वी हैव क्रिएटेड द बैंक अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक। मेथड सेलेक्ट कर लेंगे, हमने यहाँ पे चेक मेथड सेलेक्ट किया है। चेक नंबर आप यहाँ पे एंटर करेंगे और इस वाउचर को सेव कर देंगे। हमने वाउचर सेव किया है। अब हम फिर से वही प्रोसेस करेंगे कि एम्प्लॉय पेमेंट में ऐड करेंगे इसको। लाइक हमने एम्प्लॉय को पेमेंट किया है, प्रिया श्रीवास्तव, अमाउंट है 1200 और हमने इसको सेव कर दिया। हमने इसको जनरल पास कर दिया। अब हम इसको जनरल एंट्रीज पे जाके चेक करेंगे तो ये जनरल हमारा शो होगा। यू कैन सी हियर डेबिट में प्रिया श्रीवास्तव 1200 रुपीज। हम इसको मैनेज रिकॉर्ड्स पे जाके इसकी क्रेडिट टू हमने किसको क्रेडिट किया है, लाइक हमने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस के लिए इसको यूज किया है और कितना अमाउंट दिया है, पूरा 1200 जो अमाउंट है वो हमने इलेक्ट्रिसिटी में एक्सपेंस कर दिया। डिस्क्रिप्शन ले देंगे, बीइंग अमाउंट पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। और क्रिएट कर देंगे ये जनरल एंट्री। डेट आज की ही रहेगी। अभी आप देख सकते हैं कि ये पूरा 1200 रुपीज क्रेडिट हो गया है 12 प्रिया श्रीवास्तव के अकाउंट में ही इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस के। और इस एंट्री को हम जाकर चेक करेंगे बैंक बुक। ये देखिए बैंक बुक में भी ये एंट्री शो हो रही है, डेबिट 1200 रुपीज थ्रू प्रिया श्रीवास्तव। इसी तरह से जो थर्ड टाइप है हमारा, सेकेंड टाइप हम देखेंगे आप कॉन्ट्रा वाउचर्स। कॉन्ट्रा वाउचर्स की एंट्री में आपने डाला फ्रॉम बैंक अकाउंट, हमने बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन करना। तो कॉन्ट्रा वाउचर्स में जाके हम बैंक सेलेक्ट करेंगे, कौन सी बैंक से हमें किस बैंक में डालना, लाइक हमें सीबीआई बैंक से बैंक ऑफ बड़ौदा में ट्रांजैक्शन करना। तो 25,000 का हमें ये ट्रांजैक्शन करना है, बैंक में ही करना है। किस बैंक में करना है, बैंक ऑफ बड़ौदा। आप नरेशन यहाँ पे मेंशन कर देंगे, पेमेंट मेथड जो भी है वो भी मेंशन कर देंगे और इस एंट्री को सेव कर देंगे, सेव फॉर्म। बैंक नीचे करो गुड़मा बैंक है। सॉरी सर, बैंक में देखो, अभी बैंक में ट्रांसफर हुआ होगा बैंक से बैंक। जी जी। अब हम इसको बैंक ट्रांजैक्ट यहाँ पे जाएंगे, कैश बुक और बैंक बुक में बैंक ट्रांजेक्शन पे जाके चेक करेंगे तो बैंक हाँ ट्रांजेक्शन में ये शो होगा 10,000 रुपीज। दैट इज फ्रॉम डेबिट एंड क्रेडिट, ये दोनों एंट्री शो हो रही है। एक्सिस बैंक से डेबिट हुआ 10,000 रुपीज और बैंक ऑफ बड़ौदा में क्रेडिट हुआ वाया चेक। इसी तरह से थर्ड टाइप का जो हमारा वाउचर है वो है इनकम वाउचर। इनकम वाउचर में जाएंगे, हम लोग इनकम की डिटेल्स मेंशन कर देंगे, लाइक हमने कैश लिया है, अमाउंट है 2,000 रुपीज और ये हमने सपोज किया कि ये हमारी ट्यूशन फीस में, ट्यूशन फीस के हेड के अंदर आ रहा है तो हमने ट्यूशन फीस सेलेक्ट किया और हम इस इनकम को सेव कर देंगे।
इनकम वाउचर सेव्ड। तो हम लोग इस कैश बुक में जाके चेक कर सकते हैं। इनकम वाउचर में जाके हम इसको चेक कर सकते हैं और ये हमारे ट्यूशन फीस के ऐड के अंदर सेलेक्ट हो गया है। तो इस तरह से आप अपनी सारी एंट्रीज कर सकते हैं इस पे। आपको सारा रिकॉर्ड भी यहाँ पे एम्प्लॉय पेमेंट का, वेंडर पेमेंट का, या फिर जो भी एक्सपेंसेस पेमेंट का, ये सारा रिकॉर्ड भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बुक मास्टर पे जाके आप कैश बुक, बैंक बुक या जो भी बैंक ट्रांजैक्शंस हैं वो भी चेक कर सकते हैं। एक्सपेंस मास्टर, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आप इस पे अपने बैंक अकाउंट्स या वेंडर्स एक्सपेंस कैटेगरीज या कोई भी अगर आप अकाउंट हेड क्रिएट करना चाहते हैं तो वो यहाँ से जाकर क्रिएट कर सकते हैं। So yeah, that's all from my side. Now, if you have any kind of queries, I would like to over to Arun sir for solving your queries. Please, uh, ask. Over to you, Arun sir. जी। If you have any kind of queries, please आप पूछ सकते हैं। अकाउंटिंग से रिलेटेड, अकाउंटिंग टर्म से रिलेटेड या फिर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड भी कोई क्वेरी है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। Ma'am, can it generate बैलेंस शीट? जी जी। क्या क्या बैलेंस शीट ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी? हाँ सर, हो जाएगी। ओके। बैलेंस शीट एंड लेजर लेजर सर हो जाएगा। दोनों हो जाएंगे। हाँ यस सर। राइट, थैंक यू। वेलकम सर। और सर कोई क्वेरी? एक चीज मुझे पूछनी थी। जी। कि जैसे हम जो अभी एक्सपेंसेस वगैरह मेंशन करेंगे, जैसे आज हमारे पास फीस आई 10,000 10,000 रुपीज की अप्रोक्स, जी। और एक्सपेंसेस हुए उसमें किसी भी हेड में हम्म 3,000 रुपीज, तो जो हमारा डैशबोर्ड जो फीस का आता है तो उस पर हम्म। मेंशन होकर टोटल हमारा शो होगा उसमें, हाँ हाँ, हम बैलेंस तो फीस होगा सर। फी डैशबोर्ड पे। जी 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 जी, बिल्कुल। तो आप दिखा सकते हैं आप इस पे अभी कोई भी एक्सपेंसेस या फी डैशबोर्ड पे? पूर्णिमा, हेलो। सर अरुण सर, हेलो। आपको अलाउ कर दिया है मैंने स्क्रीन शेयर करने के लिए। टीम जरा, पूर्णिमा जरा एंट्री करके दिखाओ। नहीं, इसमें एक क्वेरी मेरी भी है जी जी सर। कि जब हम फीस जमा करते हैं बच्चे की सिस्टम में, तो हाँ हाँ, इनकम में ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक आना चाहिए। ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। तो वो इनकम हम अलग से कंप्यूट करेंगे? नहीं सर, अभी जैसे क्या होता है, इससे मैं कह नहीं करना है तो नहीं करिए। हमारे सॉफ्टवेयर में जो हमारा वो चल रहा है, फीस जमा हो रही है, कुछ दिन बाद ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। अभी हम लोग उस पर जी काम कर रहे हैं। जी। कुछ दिन बाद अपने आप ऑटो जनरेट होने लगेगा। हाँ, वही है ना, तो इनकम तो हमारी कोई हाँ हाँ अदर सर, बिल्कुल। ट्यूशन फी के अलावा कोई अदर एक्स्ट्रा इनकम अगर फर्म की है हाँ हाँ तो हाँ, अदर तो वो वो करेंगे हमें वो सर। लेना चाहिए। अदरवाइज फीस जितनी फार्म में जमा हो रही है वो सभी फार्म में ऑटोमेटिक हमारी इनकम में आना चाहिए। हाँ यस सर, यस, ऑटोमेटिक जनरेट होने लगेगी। अभी नहीं हो रही प्रेजेंट टाइम, कुछ दिन बाद ऑटोमेटिक उसमें जनरेट होने लगेगी। ओके। तो ये
हाँ सर, आपकी क्वेरी क्या थी? मेरी क्वेरी ये थी कि जैसे फीस आपने फीस सबमिट हम करते हैं तो वो इनकम उसमें शो होती है डैशबोर्ड पे। तो जैसे अगर जी एक्सपेंस जो हम ऐड करेंगे तो वो डैशबोर्ड पे वो भी शो होगा ना, आपको नेट बैलेंस आपका शो होगा उसमें। हाँ हाँ बिल्कुल सर, देखिएगा सर। सब लोग क्या करेंगे, पहले एक बाउचर क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। जी। यहाँ पे नरेशन दे देंगे जो भी है। कि बैंक करना है बैंक से, कि हम कैश करना है कैश से, तो हम सबसे पहले इसको बैंक से पेमेंट कर देंगे। जिस बैंक से करेंगे वो बैंक उठा लेंगे। बाई चेक है तो चेक, आरटीजीएस है, नहीं तो जो भी प्रॉब्लम है तो हम इसको चेक द्वारा कर लेंगे। चेक नंबर यहाँ पे डाल देंगे, ये सेव करा देंगे वाउचर। So this is basically the launch of EduBuddy, and we are working on few things right now also. So soon we will create the expense dashboard also. एक मिनट। Sure. ये सर आपने पेमेंट क्रिएट कर दिया, ठीक है। ये मैं जनरल में सर, ये मैंने हर स्टेटस को पेमेंट कर दिया। इसके बाद सर आपने कहा कि हमने कितने खर्चा किया हुआ है। नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मैं स्कूल में मैनेजमेंट या प्रिंसिपल की पोस्ट पे वर्क कर रहा हूँ अभी, तो मुझे जी ये है कि जैसे आज का जो कलेक्शन आया है और जो आज जो खर्च हुआ है, मेरे पास नेट बैलेंस मुझे इतना चेक करना है रिसेप्शनिस्ट से या अपने अकाउंटेंट से। मान हाँ लीजिए हाँ मेरे हाँ पास 10,000 फीस आई है हाँ हाँ आज, और 10,000 में 2,000 रुपये किसी भी हेड में एक्सपेंस हुआ है, हाँ, तो ओके टेन ओके थाउजेंड तो आपकी तो इनकम हो गई हाँ, तो और आपको टू बैलेंस थाउजेंड चेक। आपका एक्सपेंसेस हाँ हो गया। हाँ तो मेरे ओ- पास जो डैशबोर्ड है उस पर शो होना चाहिए कि आपका इनकम 10,000 है, 2,000 एक्सपेंसेस है इस साइड में, आपके अच्छा पास जो बैलेंस बैलेंस। अमाउंट होना चाहिए वो हाँ 8,000 आपका कैश इन हैंड होना ओके सर, चाहिए। ओके सर, ओके। सर अभी आप इसको वाउचर लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। जो डैशबोर्ड है वो हम बहुत ही जल्दी क्रिएट करने वाले हैं। पूर्णिमा एक मिनट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले फीस कैश द्वारा रिसीव कर लिया 10,000, ठीक है। सर जो क्वेश्चन करें उसको जवाब दे रहा हूँ। ये यहाँ से वाउचर क्रिएट कर लेंगे। ये 10,000 रुपये।
रिसीव कर लिया कैश। ट्यूशन फीस। अब इसके बाद मैंने एक्सपेंसिव दिए। खर्चा कर दिया। कैश कितना? हाँ, आप ऐसा कीजिए, देख लीजिएगा आराम से। मैं मतलब इस चीज को आप लिख लीजिएगा, मतलब इस हाँ तरह का मैं डिमांड नहीं है नहीं मतलब सर, कि सर मैं वो दिखा रहा हूँ आपको जी कि जी टेन जी थाउजेंड हमने फीस रिसीव कर लिया हुआ, 2000 हमने खर्चा कर लिया हुआ, ठीक है सर। जी जी जी। कैश, तो आज ये हमारे कैश बुक में इफेक्ट आ गया 10,000 और 2000 हमने खर्चा कर दिया, तो यहाँ से हम आज की डेट में जाएंगे तो बैलेंस जी निकल आएगा। नहीं, तो ये कैश बुक में मेंशन करना पड़ेगा कि हमने आज इतनी फीस रिसीव करी है। वो तो हम फीस जमा कर रहे हैं, वो तो उसमें ऑलरेडी ऑटोमेटिकली ऐड हो जाना चाहिए। नहीं नहीं सर, जब आप एक्सपेंसेस डालेंगे तो कैश बुक में अपने आप ऑटो जनरेट हो जाएगी ये। जब वाउचर क्रिएट करेंगे ऑटोमेटिक नहीं, ये जनरेट हो फीस का कैश बुक में फीस का भी वाउचर डालना पड़ेगा। जाएगा। हाँ हाँ, अभी डालना पड़ेगा सर, कुछ दिन बाद, अभी जब बन जाएगा तब नहीं आप ऑटोमेटिक को इफेक्ट हाँ, होने मैं वही लगेगी। चाह रहा हूँ, जब भी मतलब अभी तो आप लॉन्च कर लीजिए, से लॉन्च करने के बाद ये चीज आप रखिएगा कि मतलब फीस वाले हेड से तो फीस उसमें इंक्लूड हो जाए, हाँ हाँ, हो इतनी जाएगी हमारी सर। इनकम हुई। और जो हाँ एक्सपेंसेस हैं, हाँ जो भी हम एक्सपेंसेस वाले हेड में डालें, वो उसमें मर्ज होके एक शॉर्टेड एक लिस्ट निकल आए कि मतलब पर मैं डे। जैसे मुझे 5 मिनट देनी है, मुझे 5 मिनट अपना पूरा चेक करना है कि आज का दिन क्या रहा, कैसा रहा। हाँ हाँ, ये सब कि हो आज जाएगा सर। 1 लाख का कलेक्शन रहा, 10,000 जी इसको जी। दिए, 20,000 उसको दिए, 5,000 उसको दिए, हाँ 50,000 हमने इस तरह से खर्च कर दिए, तो मेरे पास 50,000 कैश होना चाहिए टेबल पे। हाँ हाँ, बिल्कुल सर, पर डे आप निकाल लेंगे कि कैश बुक में जाके कि कितना हमने खर्चा किया और कितना मेरे पास क्लोजिंग बची, वो निकल आएगा पर डे। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। और एक चीज और और क्वेरी थी मेरी, जैसे अभी हम पे फीस वाले में है, एक छोटी सी क्वेरी पूछ सकता हूँ क्या मैं? जी जी जी, बिल्कुल सर। उसमें ये था कि जैसे किसी बच्चे की 2000 पिछले सेशन की कोई फीस ड्यू है 24-25 हम्म की, हम्म और हम्म वो 25-26 में फीस जमा करने आया आज, तो उसमें हम्म। क्या हो रहा है, अगर हम पे फीस में जाएं तो वो सारे जो फीस है ना, वो मिक्स्ड आ रही हैं, सारे जो आपके हेड्स हैं। मतलब हाँ सर, वो इसमें ऐसा ऑप्शन हो जाएगा कि आप ये सोच रहे हैं कि पिछले साल की कितनी बैलेंस फीस थी हमारी, वो आप हाँ, देखना। मतलब जो लास्ट ईयर के सेशन का जो हेड्स हैं वो एक साथ मर्ज होके आए हैं। जैसे मान लीजिए किसी की जन 5 मार्च की फीस ड्यू है, तो वो एक जी साथ जी, ऊपर आ जाए, जन 5 मार्च, उसके बाद फिर अप्रैल स्टार्ट हो। ठीक है सर, ठीक है, हो जाएगा सर, वो भी हो जाएगा, मैंने नोट हाँ कर लिया हाँ हाँ क्वेश्चन आपका। जी। और सर कोई और पूरी है? बाकी मेरी बस यही क्वेरी है, थैंक ठीक है। यू। I think no one has any queries now, so I'll like to invite Amrita again to end this session. Amrita, please continue. Thank you, Purnima ma'am, and thank you so much, Purnima ma'am and Arun sir, for the detailed walkthrough and practical insights into Expense Buddy. And a big thank you to all our participants for joining us today and actively engaging throughout the session. We hope this training gave you a clear understanding of how Expense Buddy can streamline your schools and colleges expense process, from voucher creation and payment tracking to reporting.
As we move forward, the official launch today, we are confident that Expense Buddy will bring great value and efficiency to your finance operations. If you have any further question or need one-on-one support during onboarding, feel free to reach out our team. We are here to help. Once again, thank you for being a part of this journey with us. Wishing you a smooth transition to Expense Buddy. Have a great day ahead. I'm sorry to intervene. There is a small thing. There was a query which was raised by one of the participants. Very quickly, I'd like to inform that this is already there incorporated. I'll just very quickly show. A participant wanted to know whether student we can check the last year fees also. So maybe this was not clarified. I'll very quickly like to clarify. This is the student homepage of fees homepage. Now in fees homepage, I'll just show up. जो सवाल था, सवाल ये था कि इस साल की फीस दिख रही है, पिछले साल की फीस का क्या हुआ? सर यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देखिए, ये स्टूडेंट का पेज दिख रहा है, इसमें इस साल की 25-26 की फीस दिख रही है। यहाँ पे ऊपर फिल्टर बाय डिफॉल्ट इस साल का लग जाता है। आप अगर इसमें फिल्टर पे जाके और यहाँ पे पिछला साल सेलेक्ट कर लीजिए, तो पिछले साल की फीस ऑलरेडी यहाँ पे है। आपको पिछले साल की सारी फीस दिख जाएगी। उसमें अगर आपको देखना है, केवल पेंडिंग देखना है, तो आप यहाँ पे 0 हटा दें, तो पिछले साल की जो भी पेंडिंग बची है वो आपको दिख जाएगी। जब स्टूडेंट की हम क्रिएट पेज पे जाते हैं तो वहां पे भी दिखता है। तो जो अगर अभी आ रहा है उसको आपको पिछले साल की फीस जमा करनी है, तो आप यहां से जमा कर सकते हैं। विशाल जी, अगर विदाउट फिल्टर लगाए हुए अगर किसी बच्चे की पेंडिंग है तो फीस जो है ना मिक्स जा रही है। बस मेरा क्वेरी यही थी कि वो मिक्स ना है। अगर हमने फिल्टर लगा रखा है तो शो हो रही है अलग अलग, और अगर आप फिल्टर यूज नहीं कर रहे हैं ना तो फीस जो है मिक्स शो हो रही है। जैसे कि पहले आपकी 25-26 की है कुछ हेड्स, फिर लास्ट में जाके मान लीजिए किसी की दिसंबर की है तो दिसंबर मंथ आता है लास्ट में बिल्कुल, तो उसकी जो पेंडिंग फीस जो शो होगी, जैसे मान लीजिए आपके पास सामने 10 गार्जियन खड़े हुए हैं, तो जो रिसेप्शनिस्ट क्या करेगा, वो जल्दी जल्दी से उसका डेटा खोलेगा और वो देखेगा कि मतलब इस पे क्या क्या पेंडिंग है। तो वो उस समय मतलब उसका माइंड इतना वर्क प्रॉपर्ली वो नहीं करता कि मैं इसमें फिल्टर लगाऊं ये करूं। उसे अगर ऊपर ही वो सारी चीजें पिछला साल का दिख जाएगा तो वो थोड़ा इजी होगा उसके लिए। आप चाहते हैं पिछले साल वाला ऊपर आ जाए जो पेंडिंग हाँ है, जी, और हाँ इस जी, हाँ साल जी, वाला बिल्कुल। उसके हम इसका एक ऑप्शन डाल देते हैं कि जो स्कूल ऐसा चाहता है, हो सकता है कुछ स्कूल चाहते हो कुछ ना चाहते हो, जो स्कूल चाहता है यहाँ फिल्टर में ही वो ऊपर आ जाए जो पुराना सेशन है। ठीक है, ये चीज हाँ करी हाँ जा हाँ, बिल्कुल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल जी। मेरे पे भी और कोई इम्प्लीमेंट चीज? करना है हर्षल जी। हाँ, गोल्ड माइन पे भी इम्प्लीमेंट यही हाँ, है। ये गोल्ड माइन कॉन्वेंट स्कूल वाले सर भी हैं मेरे पास, तो सर का भी यही जी, क्वेश्चन मतलब। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक ठाक। मैं ये कह रहा था, जो ये सर बोल रहे हैं ना वो फिल्टर आप मेरे पास भी लगा दीजिएगा। एक्चुअली मैं भी सुन रहा हूँ मीटिंग आपकी। जी जी, ठीक है ना, तो जो भी आप वो फिल्टर लगाएं वो आप मेरे उस पर भी लगा दीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल कर देते हैं। और कोई प्रॉब्लम आपकी हो तो बताएं। बाकी जो सर प्रॉब्लम बता रहे हैं सारा मेरे पे इम्प्लीमेंट कर दीजिएगा बस। ठीक है, ओके ओके। अब आप लोग एक्सपेंसेस वाला यूज करिए, और इसमें कोई भी इश्यूज आए तो हम लोग उसको सॉर्ट आउट करेंगे। जो आपने बोला एक्सपेंसेस का डैशबोर्ड, वो ऑलरेडी प्रोसेस में है, डैशबोर्ड बन जाएगा और मिक्स डैशबोर्ड भी बन जाएगा। तो आप दोनों में एक जगह देख सकते हैं। जैसे अभी आप रिसिप्ट देख लेते हैं, वैसे ही आप एक्सपेंसेस भी देख लेंगे। ओके, Sure, थैंक sure. यू फॉर ज्वाइनिंग।